Hi all, good morning. Good morning. Good morning, sir. Okay, we start. Take a long breath in and breathe out completely. Breathe in for Om. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमयम् हरि ओम् योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ ॐ नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुद्धाय च गुरुशुक्र शनिश्च राहवे केतवे नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ खगाय नमः ॐ भान्वे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पुष्णेय नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरिचे नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सवित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ श्री सवित्र सूर्य नारायण नमः मातृदेवः पितृदेवः गुरुदेवः अतिथिदेवः pray to all munis, all the teachers, all relatives, all our ancestors, and everyone who shows the path of dharma and the righteous way of living, all our wisdoms, all our text that is giving us the prajna or the wisdom, and through which will remove our avidya and ignorance and will remove our human suffering. And the ultimate goal of yoga is getting moksha in this human life. Okay. I think all are there. Only Prabhas Niji yet to join. Okay, no worries. So what is today's topic? वैसे देखें Demonstration in yoga, its meaning, importance, and method of presentation.
आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, The अच्छे से बोलिए। demonstration in yoga, its हाँ, meaning, importance, and method of its presentation. ओके। सो के उठे हैं क्या जस्ट? आर यू टायर्ड और हेल्थ इज गुड? नहीं सर, फीवर था इस वजह से थोड़ा ओ, गले ओके। में भी उस स्वेलिंग है। हाँ, उसीलिए वॉइस इज साउंडिंग थोड़ा कि वीक है। ओके, नो वरीज। आज के बाद आपको 2 दिन रेस्ट मिलेगा। आज का एक क्लास कर लीजिए बस। ओके, तो सब थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। तो जो टीचिंग स्किल्स में हमें टीचर प्रोस्पेक्टिव में जो समझना है उस चीज को यहाँ आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का टॉपिक के हिसाब से आपको क्या एक प्राइमरी इंप्रेशन क्या आ रहा है? एनीवन? एक क्या होना चाहिए फॉर ए गुड क्वालिटी क्लास? Knowledge. नॉलेज एंड मोर तो इफेक्टिव के लिए? Knowledge of what you teach and how to demonstrate. यस। Patience. एंड Patience. पेशेंस, यस। एंड And how to means modulate with the necessities of each and every individual. यस। सो वी हैव टू हाईलाइट both way. One is practical approach, experience, and same thing, theory and practical both should link. So good demonstration, okay, correct content, and yes, first I should have the knowledge to convey to others. So good communication skills and a proper planned session. मतलब क्या पढ़ाऊंगा, what I'll teach, and that all will be well planned. क्योंकि मैं जब एक योगा सेशन ले रहा हूँ, अगर मैं 60 मिनट्स का एक सेशन ले रहा हूँ, तो उसमें क्या कंटेंट जाएगा, कैसे जाएगा, व्हाट इज द सीक्वेंस, दैट ऑल विल बी फाइनलाइज्ड। ओके, नाउ लेट मी कम टू द मटेरियल। Lecture come demonstration in yoga, its meaning, importance, and method of its presentation. So when we are teaching someone, okay, so definitely, especially in the science field, in the yoga field, and so many field, if my brain is designed such a way that visual demonstration, practical application of that, okay, demos, this all will create good understanding, also creates a impression which will strong faster and easily. So that's why you'll say visual memories are stronger. So when you are doing what all things you have to do, so theory as well practical. So now with our this classes, you are attending a practical class also. So both you have to sync. How? Suppose only theory you are learning, but you are not at all yourself, you are trying, so it will not work. Suppose verbal explanation, if it's a very jargon word and all, किसी को समझ में नहीं आ रहा और a language that people cannot adapt, तो वो आपका हेल्प नहीं होगा। नेक्स्ट, आपका विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन। अगर एक चीज को मैं जो बता रहा हूँ एज इट्स ए कॉर्पोरेट मॉडल स्कूलिंग यहाँ हो रहा है, तो प्रैक्टिकल इज डिफरेंट। बट पहले हम लोग जो टीच करते थे, whatever my experience previously, more will teach during the practical session only. क्यों? इतना formal theory and all it was not before 2018. So only they'll give the this one, that one, and through Swadhyaya and through some of the conferences will get these knowledges and with self reading. But now YCB has designed in such a way कि आपको थ्योरी में भी 70% स्कोर करना है, प्रैक्टिकल में भी करना है। तो डेफिनेटली दे आर कवरिंग बोथ एस्पेक्ट्स एंड हमें वो टीचिंग स्किल में दिखा जाएगा। जैसे अगर मैं एक बीएससी इन फिजिक्स हूँ, लेकिन मुझे टीचर बनने के लिए इन ए हाई स्कूल और इन ए समवेयर मुझे एक बीएड भी करवाते हैं, आपको एक पेडागोजी में भी आपको नॉलेज देते हैं। एंड दैट सेम थिंग हियर वाईसीबी ट्राई टू अटेम्प्ट की थ्योरी भी एक यूनिट 1-2 का एग्जाम देंगे, टीचिंग स्किल्स का भी नॉलेज होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होगा, थोड़ा फील्ड एक्सपेंस भी होगा, थोड़ा आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी होगा, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिकॉर्ड रखेंगे,
कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, दैट ऑल विल होल्ड व्हेन यू आर गोइंग टू द प्रैक्टिकल सेशन, जब वाईसीबी का एग्जाम देने जा रहा है, तो दैट ऑल डेफिनेटली विल एड ए वैल्यू टू यू। तो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। क्यों? अगर अभी नेक्स्ट 40-45 मिनट्स का आपका सेशन है, मैं खुद सब बोलते जाऊंगा, मुझे पता नहीं सामने आप सुन रहे हो नहीं हो, सामने बैठे हो या बैठ के कुछ अलग चीजें सोच रहे हो, ओके, अन्य मनस्क हो, तो नहीं होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करना। टीचर का क्वालिटी क्या करेंगे, एटलीस्ट उनका व्यू सुनेंगे, उनको एक क्वेश्चन पूछेंगे, और वो सब बोथ वे इंटरेक्शन इज ए इफेक्टिव क्लास। ओके, सो बोथ वे इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी। सो द मेथड इज one of the most effective ways of teaching yoga because student can both hear and see the practice। तो जब आपका एक क्लास तभी कंप्लीट होगा, यू आर ए YWA तभी बनोगे एक योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, जब आप पहले खुद करोगे, और जो जो सिलेबस में हो प्रैक्टिकल्स आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और वो क्लास को अटेंड करते हुए, थ्योरी पढ़ते हुए उसको अप्लाई करने का ट्राई करेंगे पहले खुद को, एंड उसके बाद एज यू आर लर्निंग दिस एज ए टीचर पर्सपेक्टिव आपको लोगों को पढ़ाना है। श्याम भाई में भी आपको कुछ क्लासेस, डेमो क्लासेस दिया जाएगा, जो एक एक जन एक एक क्लास लोग, तो वो क्लास लोग है, नहीं तो 15-20 मिनट एक एक को एक 1 आवर में हम एलोकेट करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक लेके आप पढ़ाओगे। तो हाउ यू आर टीचिंग, आपका वॉइस क्वालिटी, आपका नॉलेज, और हाउ द SMS स्टूडेंट मैनेजमेंट स्किल, कैसे बोथ इन्वॉल्व कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, डेमो कैसे दे रहे हो, कुछ विजुअल प्रेजेंटेशंस, कुछ डेमो देना, डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ आसना का इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन बताते हुए जाना, तो दैट ऑल विल डेफिनेटली क्रिएट योर क्लास इफेक्टिव एंड वेल प्लान सेशन। क्या है, मैं सपोज एक 1 आवर का क्लास ले रहा हूँ, तो एक प्रेयर भी रखा, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम रखा, थोड़ा स्थूल व्यायाम रख लिया, थोड़ा सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, थोड़ा दंडा, उसके बाद 4 टाइप्स ऑफ आसना, स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन, प्रोन, सबको अकोमोडेट करूंगा एक 20-25 मिनट। उसके बाद थोड़ा शवासन में रिलैक्सेशन करवाऊंगा, फिर प्राणायाम में लाऊंगा, प्राणायाम एक 10 मिनट कर लिए, तो एक ध्यान वगैरह करके समापन करके सेशन क्लोज करूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि एवरीवन विल गेट रिलैक्स्ड। सब वो क्लास के बाद रिलैक्स होके खुश होके जाना है, एंड दैट्स व्हाट योर कंप्लीट सेशन प्लानिंग। उसको टाइम एलोकेशन, टाइम पे स्टार्ट करना, टाइम पे क्लोज करना, क्योंकि कॉर्पोरेट में ऑल में क्या है, लोगों का टाइम कांस्टेंट भी होता है। एक पर्सन आपका सुबह 8 to 9 का बैच आया है, अगर 9 बजे क्लास खत्म नहीं कर रहे हो, टाइम पे स्टार्ट नहीं कर रहे हो, और उस बंदे का ऑफिस लेट हो गया, तो ही हैज टू रीच मे बी इन ट्रैफिक, हाफ एन आवर जर्नी होगा, 9:30 को ऑफिस पहुंचना है। अगर मैं ही खुद डिसिप्लिनली नहीं कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट विल सफर। तो उसको ट्राई करेंगे एक 5-10 मिनट्स हियर एंड देयर, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करेंगे ऑफिशियली क्लास क्लोज करने के लिए इन अ टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, और पंक्चुअलिटी, डेफिनेटली यू नीड ए पंक्चुअलिटी फॉर ए इफेक्टिव सेशन। क्यों? वो बंदा सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकल के आया है, ही रीच्ड आवर क्लास की, मैं 1 घंटा अटेंड करके ऑफिस चला जाऊंगा। नहीं तो कोई शाम को आया है, ही इज कमिंग एंड ही इज वेटिंग देयर हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, आपका ठिकाना नहीं, ऐसे नहीं होना। तो दैट ऑल टीचिंग स्किल्स का एक मेथड होना चाहिए, वी हैव टू डू दैट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इन योगा, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द पर्पस एंड टेक्निक ऑफ योगा प्रैक्टिस मोर इजीली। तो क्या होगा, आप डेमो दे रहे हैं, उसका एक कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, उसका कुछ पिक्टोरियल व्यू दे रहे हैं, बच्चे उसको लिख रहे हैं, उनको हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं कि यहाँ थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, यहाँ करेक्शन हो सकता है। तो वो सब चीजें अगर अलाइन कर रहे हैं, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का ठीक होगा। ठीक है? तो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। हम साइंस करने के बाद फिर प्रैक्टिकल जाते थे, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, ओके, किसी को बॉटनी, जियोलॉजी लैब वगैरह क्यों जाते थे, कि थोड़ा रिलेट कर पाए, प्रैक्टिकली करेंगे तो वो अच्छा हेल्प होगा। तो वही सेम चीज मैं यहाँ करना है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मैं आपको नॉर्मली एक IT का कोर्स करवा दूंगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाऊंगा, आप लोग थोड़ा करोगे, एरर्स आएगा, कहीं एजुकेशन का दिक्कत आ रहा है। सो सेम चीज हियर ऑल्सो, कि मुझे अभी नहीं पता, मेरे में कुछ अनइजीनेस है, वो आसना करने के टाइम मुझे लगा अरे सम में माई बॉडी इज रेस्ट्रिक्टिंग, कुछ और लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं जाकर डॉक्टर के पास चेक करवाऊंगा। अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरे योगा टीचर को बोलूंगा सर ये आसना करने के टाइम मुझे थोड़ा पीठ में पिंच पिन आए, तो जाके थोड़ा चेक करवा लेंगे। अगर सपोज मुझे थोड़ा सर घूम रहा है, इधर BP का इनिशिएट हुआ है, नहीं तो कुछ हीमोग्लोबिन का इश्यू है, थोड़ा चेक करवा लूंगा। और
क्लास स्टार्ट होने से पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे, थोड़ा खाली पेट या कम खाना खा के, ओके, डाइजेशन होने के बाद क्लास करेंगे। क्यों? बहुत शारीरिक, अगर इमीडिएट खा के करेंगे दिक्कत होगा, तो एम्प्टी स्टमक, नहीं तो लाइट स्टमक चलेगा। तो योगा सेशन का 15-20 मिनट, आधा घंटे के बाद खा रहे हैं, इट्स ओके, क्योंकि आप पूरा बॉडी को निचोड़ लिए हो, थोड़ा स्वेटिंग हुआ है, ओवरऑल एक स्ट्रेचेस किए हो, सूर्य नमस्कार किए हो, खाना खा के नहीं हो। तो इनिशियली, बाद में तो बच्चों को पता चल जाएगा, इनिशियली आप भी इंस्ट्रक्शन दे दो कि ये करो, लूज कपड़े पहनो, योगा मैट लेके आओ, ओके। जिसका जो जो मेडिकल चैलेंजेस है पहले ही उसको हम लोग बोल देंगे थोड़ा कि ये आसन में तुम्हें दिक्कत होगा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो डोंट डू, और डू मॉडिफाइड पोस्चर, वो सब हम ध्यान देंगे। reduced errors, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन प्रिवेंट्स मिस्टेक्स एंड इंजरी। तो जब मैं डेमो करूंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ कि पर्वत आसन में यहाँ आपके हील को टच करेंगे नीचे। तो कुछ लोग जिसको नहीं पता है या कहीं बाहर से कुछ सोर्स से सुना है, जब टीचर पर्सपेक्टिव आऊंगा, मैं ये सब चीजों को ध्यान दूंगा कि पूरा टच हो, ऐसे ऐसे नहीं रहे, तो ऑटोमेटिक वो अच्छा होगा। फिर मैं बोलूंगा कि आज्ञा चक्र को देखना है भुजंगासन में, थोड़ा देख के बेंड करने का कोशिश करेंगे। अष्टांग नमस्कार में 8 portions ऑफ योर बॉडी शुड टच, चिन टच कीजिए, कपाल टच कीजिए, चलेगा, बट ओवरऑल अष्टांग योग में यहाँ रखना है। अगर दंडासन प्लांक पोजिशन में बोल रहा हूँ, होल्ड करो। जो दंडासन नहीं करे, पर्वतासन में अष्टांग नमस्कार में जाने के टाइम सांस को होल्ड करो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करके, ग्रेविटी की तरफ ब्रीद आउट, एंड ग्रेविटी के अगेंस्ट में ब्रीद इन, वो करेंगे। लेफ्ट राइट में जब करवाएंगे तो काउंटर पोजीशंस को ध्यान देते हुए करेंगे। अगर मैं पूरा लेफ्ट में करके रोक दे रहा हूँ और राइट में नहीं कर रहा हूँ, इम्बैलेंस होगा। तो सूर्य नमस्कार भी मैं वही सेम रिकमेंड करूंगा। अगर मैं एक बार लेफ्ट राइट दोनों साइड से एक वाला पहले किया, तो दूसरा वाला करके एक सेट करके छोड़ूंगा, तो उससे क्या होगा, बैलेंस होगा बॉडी का। और प्रॉप का यूज करवाऊंगा, क्यों? एरर कम होगा, शरीर को कष्ट नहीं होगा, और धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे। एंड सिंपलर वर्सन, मॉडरेट वर्सन, देन एडवांस वर्सन में जाऊंगा। इम्प्रूव्स रिटेंशन, ओके। तो आपका क्या होगा, स्टूडेंट्स रिमेंबर्स प्रैक्टिसेस बेटर व्हेन दे सी एंड परफॉर्म देम। तो आपका क्या होगा, जब आप करोगे, नहीं तो जो एक दो बच्चे परफेक्ट है उनको बुला के अगर साइड व्यू फ्रंट व्यू सब कर रहे हैं क्लास में, तो क्या होगा, बच्चे उसको देखने के बाद परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि दे आर डूइंग गुड और नॉट। जो अच्छे लोग, जो पुराने हैं, वो लोग परफेक्ट कर रहे हैं, उनका जस्ट ओवरलुक करके चले गए। जो न्यू लोग हैं थोड़ा उनको देखेंगे, करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, पोस्चर अलाइनमेंट सही है कि नहीं। अगर ठीक कर रहे हैं और कहीं थोड़ा हल्का ही रह रहे, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे। एंड ए फील्ड ऑफ योगा, आपसे सीनियर आ सकते हैं, ओल्ड एज आ सकते हैं, मिडिल एज आ सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स। तो हमें सबके साथ तालमेल बिठा के विथ रेस्पेक्टफुली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, वो रेपो बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल फॉलो यू। नेक्स्ट, इंक्रीजेस इंटरेस्ट, ओके। कंबाइनिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस मेक्स क्लासेस मोर एंगेजिंग। अगर मैं एक कोर्स आपको दे रहा हूँ और उसमें मैं प्रैक्टिकल टोटली नहीं सिखा रहा हूँ, तो नहीं होगा। तो दोनों को कंबाइंड करके 3-4 महीना पढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका वो दोनों एस्पेक्ट को आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो वो आपका टीचिंग स्किल में रिफ्लेक्ट होगा। एंड इफेक्टिव फॉर ऑल लेवल्स। तो मैं ऐसे क्लास को लूंगा, जैसे कल एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि पद्मासन सर मुझसे नहीं हो रहा है, तो उनके लिए हमें क्या करना है, पहले पद्मासन नहीं होगा, उनका हिप में फैट्स है या खुला नहीं है, तो उनका हैमस्ट्रिंग्स में स्टिफनेस है, तो क्या करेंगे उन लोगों के लिए, दंडासन से अर्ध तितली आसन, ओके। लेफ्ट साइड का, और बेबी स्विंग पोस्चर, जो किया मतलब टांग को उठा के ऐसे छाती के पास खींच के मूवमेंट किए, खुलेगा। फिर थोड़ा चक्की चालन आसन करवाएंगे, थोड़ा सौंदर्य कटी चक्रासन करवाएंगे, फिर थोड़ा नॉर्मल सिद्धासन का बिठाने का कोशिश करेंगे, और अर्ध पद्मासन में जैसे बैठ रहे, ओवर ए टाइम पूर्ण पद्मासन में बैठेंगे। और पहले लंबे टाइम नहीं बैठ पाएंगे, पहले 4-5 मिनट के लिए ट्राई करेंगे, ओवर ए टाइम वही 15 मिनट आधा घंटा होगा। तो बिगनर के लिए भी ठीक होगा, जो इंटरमीडिएट है वो लोग डायरेक्टली पद्मासन वज्रासन में सिद्धासन में बैठ जाएंगे, तो उनके लिए बढ़िया। जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स है, उनको अगर और कुछ कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो दैट ऑल आल्सो यू कैन डू। तो सब लेवल को लेके, सब एज ग्रुप को सेटिस्फाई करके, सब जेंडर्स को सेटिस्फाई करते हुए क्लास को आगे बढ़ाना। तो योर क्लास शुड बी मीनिंगफुल फॉर ऑल द पीपल। सब ग्रुप बना सकते हैं इफ क्राउड इज मोर, ओके। लाइक माइंडेड एज, लाइक माइंडेड इंटेंट, लाइक माइंडेड इंटेंशन जिनका है कि मुझे सर थोड़ा थ्योरी ज्यादा चाहिए, प्रैक्टिकल कम, क्योंकि मेरा ये मेडिकल इश्यू, यू हैव टू एंटरटेन देम। थोड़ा स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनलिटी, उनको आसनास में थोड़ा रिग्रेशन ज्यादा चाहिए, उनके लिए होगा। जैसे सूर्य नमस्कार एंड ऑल, थोड़ा कफ प्रकृति लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए,
इन दैट विल अप्लाई। तो धीरे धीरे आपका हो जाएगा। प्रमोट सेफ प्रैक्टिस, तो पूरा सेफली करेंगे, वॉल का सपोर्ट लेंगे, आपका ब्रिक्स का सपोर्ट लेंगे, पिलो का, बेल्ट का। ओके, कुछ लोग नहीं बैठ पा रहे, नी इंजरी, एंकल इंजरी से, चेयर पे बैठ के करेंगे। ओके, और जिनके पास योगा मैट नहीं है नया, तो हमारा स्टूडियो में आए हैं, तो हमारा एक्स्ट्रा योगा मैट उनको प्रोवाइड करना है, क्योंकि नीचे करेंगे तो नी इंजरी होगा। और जो वज्रासन वगैरह में नहीं बैठ रहे, कुशन यूज करेंगे, लेट देम यूज, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। और मेन चीज है, सबसे सूक्ष्म व्यायाम अगर अच्छे से करवा रहे हैं, बॉडी का जॉइंट ओपनिंग्स हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, दैट विल प्रिपेयर्स बॉडी फॉर हायर स्टफ, सो उस हिसाब से अच्छा होगा। एंड मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, पहले एक टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए, अरेंज द टीचिंग एरिया, तो एक प्रिपेयर करेंगे कि एरिया क्लीन हो, पीस हो, काम हो, तो वो हेल्प करेगा। गैदर रिक्वायर्ड मटेरियल, योगा मैट हो, नहीं तो योगा ब्रिक्स हो गया, योगा बेल्ट हो गया। ओके, थोड़ा पानी का अरेंजमेंट हो, वॉशरूम का अरेंजमेंट हो। इट्स नॉट मोर फॉर ऑनलाइन, बट ए टिपिकल क्लास वेयर पीपल आर कमिंग प्रैक्टिकल। ऑनलाइन में सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, स्टूडेंट का भी विल से कि बाकी को हर्ट हो सकता है, तो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस के साथ रहें, लूज वेयरिंग करें, खाली पेट आए। ओके, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ शेयर करेंगे, क्या है वो लोग बाद में रिफर कर पाए। कुछ लोग वर्किंग डे में नहीं कर पाएंगे, वर्किंग डेज वीकेंड में करेंगे, तो 4-5 टॉपिक को एक बार रिव्यू करेंगे। ई पॉसिबल, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है, तो पोर्टल एंड रिकॉर्डिंग वगैरह भी शेयर कर देंगे। क्यों, कुछ लोग अगर मिस हो गए एंड उनको अलग क्लास टफ लग रहा है, तो दे कैन रिफर द रिकॉर्डिंग, तो वो सब करेंगे। और अगर हो पाया तो कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल, बुक्स जो सजेस्ट कर रहे हैं, वो सब उनको थोड़ा हाईलाइट करके शेयर करेंगे कि ये सब पढ़िए, तो ऑटोमेटिकली हेल्प होगा। तो इन दैट वे सब चीजों को ध्यान रखते हुए प्रॉपर विजिबिलिटी, प्रॉपर आवाज जाएगा। वो ऑनलाइन क्लास में भी आपका करता है। बैकग्राउंड ठीक रहना है, आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल रहना है। अगर कहीं इंटरनेट डिस्कनेक्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रिकमेंड देम कि क्या मिस हो गए, आई वांट टू रिपीट दैट, वो सब करेंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चों में वो ओवरऑल आपका पढ़ाने को आराम से फॉलो कर पाएंगे। और ऐसे भी होता है ना, सब तो रोज अटेंड करेंगे ऐसे नहीं है, मेरा भी एक दिन मेडिकल इश्यू हो सकता है, आपका भी कुछ काम आ सकता है, किसी का कुछ अलग काम हो सकता है। तो व्हेन पीपल आर मिसिंग, वो चीज को चाहिए तो उनको रिपीट करके और एक बार भी पढ़ाएंगे। क्यों, 4-5 सेशन अगर वो मिस हो गए, एज ए टीचर आवर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो क्लास जब ले रहे हैं उनको एंगेज करते हैं, नहीं तो कोई कोई एक पर्सनल टाइम में उनको पढ़ा दें, तो ओवरऑल स्टूडेंट एंड से दे शुडंट मिस एनीथिंग, सो देयर लर्निंग शुड बी ए गुड एक्सपेंस एंड इफेक्टिव। वो होना है। इंट्रो, आपका क्लास में आप एक ब्रीफ इंट्रो देंगे कि क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या आसना कर रहा हूँ, आज का प्लान क्या है, आज का टॉपिक क्या है, सबको मोटिवेट करेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आसना से क्या होगा, नहीं तो आज का टॉपिक किस चीज का ऊपर वर्कआउट हो रहा है, आपका सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। तो एवरी टाइम हमें क्या करना है, स्टूडेंट सेंट्रिक बनना है। एज ए टीचर आपको मोटिवेट करना है, वो लोग जो चाह रहे हैं वैसे करना है। उनका जो डाउट्स है मैक्सिमम पॉसिबल जो आपको आता है क्लियर करेंगे, जो नहीं है पार्क करके नेक्स्ट क्लास में आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो वैसे करके दैट क्लास शुड गिव एन वैल्यू एड टू देम। ओके, सो जैसे मैं आज बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल टुडे वी शैल लर्न वज्रासना, अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स फॉर डाइजेशन एंड मेडिटेशन। ओके, सो अंडरस्टैंड इट्स बेनिफिट, सो वज्रासन करके दिखाऊंगा, उसका थ्योरी दूंगा, उसका बेनिफिट्स बताऊंगा, इंडिकेशन बताऊंगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताऊंगा, जिनका नहीं हो रहा है उनको क्या सब स्टेप्स करने से इस आसन में ओवर ए टाइम आएंगे, बिगनर्स को गाइड करूंगा। सो ओवरऑल आई हैव टू मोटिवेट माय स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ओके, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ए टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट द प्रैक्टिस स्लोली। जैसे कल का क्लासेस आप अटेंड किए थे, तो क्या है, स्टेप वाइज चीजें बोला, काउंटर बताया। ओके, उसको दिखाने के बाद ये भी बोला कि थोड़ा इसमें अगर आप बीपी वगैरह है पूरा नीचे ना झुके, तो वो सब चीजें आपको धीरे धीरे बोलना है। और उससे रिटेंशन होने के टाइम कैसे जाएंगे, वो पोस्चर में जाने के टाइम आपका इनहेलेशन एक्सलेशन कैसे होगा, पोस्चर होल्ड करने के बाद आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, पोस्चर से बैक करके सेंटर में आने के टाइम आपको क्या है, फिर से ब्रीद इन करके सेंटर में आके रिलैक्स होंगे, एंड काउंटर पोजीशन का ध्यान देंगे, बीच बीच में रेस्ट लेंगे। तो वो सब चीजें करते हुए आप जब डेमो दोगे स्लोली, ओके, शो देम स्टार्टिंग एक मीडियम में क्या क्या करना है, जैसे पोस्चर होल्ड करके ब्रीदिंग, एक फाइनल इस पोस्चर में आके रुकना है, फिर धीरे से उस पोस्चर से कैसे रिलीज करेंगे,
एंड ब्रीद इन अलाइनमेंट, सब पोस्चर में मूवमेंट में क्या होगा, सो वो करेंगे। फेस स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएटली, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स पूरा देख पाए, फ्रंट व्यू या साइड व्यू। कोई बोला सर मुझे थोड़ा समझ में नहीं है और एक बार बताइए, नहीं तो कोई आके पूछा मुझे कि सर ये आसन में मुझे थोड़ा ऐसे हो रहा है, गलत है कि सही है, इवन एज ए टीचर मैं हाईलाइट कर दूंगा। यहाँ जनरली पीपुल ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो देयर यू कैन वर्क। एंड लोगों से पहले बहुत परफेक्शन भी नहीं चाहेंगे। जैसे हैबिल्ड एक योगा है, वो लोग बोलते हैं आप पहले रोज आना शुरू करो, डेली यू शुड ज्वाइन। तो वो लोग कंटिन्यूटी के ऊपर, ओके, कंटिन्यूस प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं एंड स्लोली करवाते हैं कि आपको परफेक्ट नहीं होना, पहले 14 दिन या 21 दिन, ऐसे धीरे धीरे सब पार्ट को करो। एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी, एक दिन सूर्य नमस्कार, ओके, एक दिन और सूर्य नमस्कार में सिटिंग पोस्चर, चेयर पोस्चर दोनों, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, इजियर वर्सन एंड थोड़ा स्पोर्ट्स वर्सन, दोनों दिखा रहे हैं। तो वैसे चीजें आप जैसे करोगे, नए लोगों को एडेप्ट करने में बहुत इजी हो जाएगा। पहले दिन से सब ज्ञान दे दूंगा, सब नॉलेज करवा दूंगा, एडवांस करा दूंगा, नेक्स्ट डे से बंदा आएगा ही नहीं। तो वैसे नहीं करना। बहुत लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है योगा के बारे में, तो उनको हम लोग को बोलना है योगा इज नॉट ओनली फिजिकल, ये सब लेयर को काम करेगा। तो पांचों लेयर को लेके योगा है। तो तैत्तिरीय उपनिषद का, जो यजुर्वेद में तैत्तिरीय उपनिषद का पूरा 5 लेयर को धीरे धीरे उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो गुड इंप्रेशन आएगा कि ओके, जिम एंड ऑल से एंड प्रैक्टिकल से आई एम डूइंग लिटिल बिट मोर ऑन ऑल लेयर्स, तो वो मेरे लिए इफेक्टिव है, वो मुझे सोचना है। एक्सप्लेनेशन, ओके, थोड़ा प्रोसीजर बताएंगे, ब्रीदिंग पैटर्न्स बताएंगे, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, जो कॉमन मिस्टेक्स है बच्चे करते हैं। जैसे कल मैं आपको त्रिकोण आसन का बता रहा था, लोग ऐसे कंधे को झुका के छाती को स्क्वीज कर देते, तो वैसे नहीं करना। कोबरा पोस्चर या भुजंगासन में भी वही है, और त्रिकोणासन में भी छाती को पूरा खोलेंगे, पूरा खोल के झुकेंगे, तो दैट विल हेल्प। एंड कल मैं आपको ये भी दिखा रहा था वॉल का सपोर्ट से कैसे करेंगे इनिशियली, वो सब चीजें करेंगे। कुछ चीजों में जिनका मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, जहां अवॉइड करना है बताया था। प्रेगनेंसी वाले स्टूडेंट्स जो आइदर प्रेगनेंसी का कंटिन्यूशन हो रहा है, नहीं तो खत्म होकर 5-6 महीने हो, तो स्टूडियो में बहुत दिन बाद आए, तो उनके लिए हमें थोड़ा केयर करना पड़ेगा कि सब चीजें नहीं करेंगे इनिशियली, थोड़ा 2-3 महीना करेंगे, फिजिशियन का फीडबैक लेंगे और आगे जाएंगे। स्टूडेंट प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स परफॉर्म द प्रैक्टिस अंडर सुपरविजन। तो क्या होगा, मैं एक बार डेमो दिखाया, वो पहला नया आया है, सीनियर सिटीजन है, नहीं तो सपोज एक प्रेगनेंसी का खत्म हुआ है, किसी का हर्निया हाइड्रोसिल का कुछ ऑपरेशन हुआ है, दे आर रिकवरिंग नाउ, 6 महीना हो गया, तो धीरे धीरे उनसे करवाऊंगा, मैं भी ऑब्जर्व करूंगा कि उनका करेक्टली हो रहा है कि नहीं। सिंपल वर्जन्स करेंगे, और पहले दिन में बहुत हायर एंड एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, मिस्टेक्स है थोड़ा बहुत करेक्ट करेंगे, स्लोली बताएंगे एंड उनको एनकरेज करेंगे। क्यों, एक बहुत मोटा इंसान है, वज्रासन में नहीं बैठ रहा, तो उसको क्या करेंगे कि आप पहले चेयर पे बैठ के करो, नहीं तो सिंपल सुखासन में बैठ के करो। कुछ लोग सुखासन में भी बैठ नहीं पाएंगे, बोलेंगे बैठ जाओ ऊपर, ऊपर बैठ के एटलीस्ट धीरे धीरे करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सिंपल आसनास करेंगे। देन स्लोली उनको हम एनकरेज करते 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 करते, वो लोग जैसे आ रहे हैं क्लास में, उसके बाद धीरे से हम अप करेंगे। तो एक टीचर क्वालिटी ये भी होना है कि यू शुड बी गुड ऑब्जर्वर, ओके, पॉजिटिवली करेक्शन करना। और सपोज अपोजिट जेंडर है, उनको टच करने से पहले उनका परमिशन लेना, नहीं तो मैक्सिमम ट्राई करना कि सेम जेंडर का अलग कैंडिडेट को बुला के बोलेंगे यू आर परफेक्ट, उनको करेक्ट कर दो, क्योंकि कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन होगा। तो रेस्पेक्ट, वो डिसिप्लिन, वो गैप, वो प्रोफेशनलिज्म, सब कुछ हमें मेंटेन करना है, क्योंकि किसी को दिक्कत ना हो। एंड स्टिक टू टॉपिक मोर, क्यों होगा, तो हम अगर टॉपिक में पूरा स्टिक रहेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लास का टाइम प्रॉपरली उसमें यूटिलाइज होगा। एंड उसके बाद अगर Q&A में बच्चे कुछ अलग चीज पूछ सकते हैं, ट्राई टू वट एवर यू नो प्रॉपरली आंसर, जो नहीं है गलत चीज नहीं बताएंगे, पार्क कर देंगे, नेक्स्ट क्लास यू विल आंसर। Q&A सेशन हमेशा डाउट्स क्लैरिफिकेशन, एक 5-10 मिनट मौका देंगे, क्योंकि क्लास के बाद किसी का कुछ डाउट होगा, ओके। एटलीस्ट अगर डायरेक्टली आप फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं इन ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल, बोलेंगे व्हाट्सएप में भेजो, उसका रिप्लाई देंगे। कोई अगर कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहे, थोड़ा अगर मेरे पास है शेयर कर दूंगा, जो अभी ये डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा हूँ, यही चीज आपको रिफर करने के लिए शेयर कर दूंगा। तो क्या होगा, ओवर ए टाइम 3-4 महीने एग्जाम देने से पहले यू कैन रिवाइज ऑल्सो। और जितना इंटरेस्टिंग हो पाए क्लास को, उतना इंटरेस्टिंग करेंगे। अगर बच्चे हैं, पिक्टोरियल व्यू ज्यादा देंगे, ओके, कुछ कुछ आसनस का यूट्यूब में वगैरह में ऑनलाइन में दिखाएंगे, तो क्या होगा, वो बच्चा जब देखेगा अच्छे से कर पाएगा। लेकिन बहुत स्मॉल किड्स को ऑनलाइन क्लास
हमेशा रिकमेंडेड नहीं है। अगर कर भी रहे, मेक श्योर उनका मदर या कोई पास में हो, क्योंकि बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो वो हेल्प होगा, तो उस हिसाब से हमें टेक केयर करना है। तो जनरली ऑनलाइन क्लासेस बहुत छोटे बच्चों को मना करते हैं। तो बहुत छोटे बच्चे हैं बिलो 8 and 10, उनको मना करते कि नहीं नहीं, आप लोग को प्रैक्टिकली सिखाएंगे, यू कैन कम। और जो चीज आपको लग रहा है रिस्क है, ऑनलाइन सब नहीं सिखाएंगे। क्यों? थियोरेटिकली मैं जो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल करने के लिए आई विल मेक श्योर कि वो लोग सामने रहे, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, कुछ चैलेंजेस हुआ, वी कैन हेल्प देम आउट। लेकिन स्क्रीन का उधर करेंगे, मैं क्या हेल्प करूंगा वहां? तो उस टाइम में डेफिनेटली सम चीजें हम लोग ऑनलाइन के चीज में थ्योरी बता देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए चाहेंगे सामने रहे। स्पेशली जैसे सूत्र नीति है, थोड़ा रिस्क है, ब्लीडिंग हो सकता है, तो उसके लिए केयरफुल करना है। उससे पहले क्या क्या गाइडलाइंस करना है, फास्टिंग करना है, वेदर गुड होना है, और उनका ईएनटी इश्यू नहीं होना है, वो सब चीजें चेक करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन बताने के बाद सिखाओ। एनिमो में तो नहीं दिखा सकता, तो क्या करूंगा, उसका थ्योरी बता दूंगा एंड बोलूंगा एक बार आप जाके एक ऑथराइज सेंटर में या एक हॉस्पिटल में जाके उसका प्रोसेस कर लो। तो शरीर भी शुद्धि हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद घर में करेंगे। तो वो सब चीजें एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आने तक एक गाइडेंस में करेंगे। तो एक गुड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होना है, एक्यूरेट होना है, क्लियर होना है, सिस्टमेटिक काउंट्स वगैरह बताएंगे, एंट्री पोस्चर से एग्जिट पोस्चर, ब्रीदिंग अलाइनमेंट, और कितना सेफली आप करवा रहे हो, तो वो मैटर करता है। सिंपल होना है, सेफ के साथ बहुत सिंपल होना है, वेल टाइम्ड, कुछ टाइम के लिए कहाँ होल्ड करना है, कितने काउंट तक पोस्चर में जाकर होल्ड करना है, उस टाइम में ब्रीद इन ब्रीद आउट जो करना है उसका हिंट देंगे, एंड बहुत नीट एंड स्मूथ इंस्ट्रक्शन होगा उसके साथ। तो बच्चे क्या इजीली ऑब्जर्व करके ग्रास्प कर लेंगे, क्योंकि मैं थ्योरी में अगर बोलूंगा कुछ चीजें सडनली पिक्चराइज नहीं होगा, लेकिन उसी को प्रैक्टिकल डेमो करके वो आसन दिखा दिया, तो लिए अच्छा होगा। तो इट शुड बी इजी टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट। ओके, अभी तक कोई क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो सर। वानिका जी, कला जी, प्रवासनी जी? No, sir. No, sir. रोल ऑफ द योगा टीचर। योगा टीचर पहले खुद एक योगा प्रैक्टिशनर होना है। अगर सर्टिफिकेशन पढ़ा रहे, पहले खुद सर्टिफाइड होना है। ओके, पहले ही शुड नो एवरीथिंग एंड इम्प्लीमेंट, शी शुड नो एवरीथिंग एंड इम्प्लीमेंट इन लाइफ, बाद में टीचिंग में आना है। और टीचिंग में आने के पहले भी आपको क्या करना है, थोड़ा वो फील्ड एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, टीचर के गाइडेंस में असिस्ट करके पढ़ाएंगे। तो एक बार आप क्लास लिए, स्टूडेंट्स का पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, आपका टीचर का अच्छा फीडबैक हो रहा है, स्लोली विल एंटर टू द क्लासेस। एंड पहले बहुत बड़ा ग्रुप क्लास एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पहले स्मॉल ग्रुप, 1-to-1 क्लासेस, ऐसे चीज करेंगे। क्या होगा, आपका थोड़ा टीचिंग में हाथ बढ़ जाएगा, जो चीजें सीखे हैं उसमें आपका थोड़ा सेट हो जाएगा, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट इनटू द ऑफिशियल क्लास। सो इंटर्नशिप जो बोलते हैं ना कंपनीज में, वही सब थोड़ा इंटर्न कर लेंगे, फिर उसके बाद विल कम टू द मेन जॉब। तो डेमोन्स्ट्रेट करेक्टली, स्पीक क्लियरली। अगर लोगों को मल्टीपल लैंग्वेजेस का है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश सब बताएंगे। क्यों? शायद समवन इज फ्रॉम साउथ इंडिया हु नेवर हर्ड हिंदी, तो उनको पूरा इंग्लिश में बताना पड़ेगा। अगर एक पर्सन है वो बोल रहा है कि मैं सर इंग्लिश जानता हूँ लेकिन मुझे हिंदी में ही क्लास चाहिए, वो मुझे कंफर्ट लगेगा हिंदी में। कोई अगर बोल रहा है कि मुझे एक रीजनल लैंग्वेज में चाहिए, इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट, वो स्टूडेंट को उस बैच में पास कर देंगे। क्यों? अच्छे से सीखना बहुत जरूरी, लैंग्वेज इज ओनली ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें पास कर देंगे, इट विल बी बेटर। और अगर आप एक दो तीन मल्टीपल लैंग्वेज जानते हो, तो इट विल ऑल्सो गुड कि वो सब स्टूडेंट्स को आप हियर एंड देयर एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा संस्कृत वर्ड यूज हो रहा है आज का व्यवहारिक लोक में। वो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, कॉर्पोरेट से आए हैं, कुछ कुछ है, सुने नहीं, तो इंग्लिश वर्ड और संस्कृत वर्ड को मिला मिला के बोल देंगे, तो क्या होगा, दोनों चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है क्लास में, कि अगर मेरे स्टूडियो में 10 बच्चे हैं तो एक डिसिप्लिन रहेगा उनमें, उनके बीच उनका कुछ डिस्प्यूट ना हो, क्वारल ना हो। ओके, सबका कुछ बिलीफ सिस्टम होगा, रिलीजन होगा, खुद का कुछ बैकग्राउंड होगा, उनका खुद सिस्टम होगा, किसी को हर्ट ना हो। अब जब स्टूडेंट्स केयरफुली, हर स्टूडेंट्स को ऑब्जर्वली केयरफुल करेंगे, उनको समझने को कोशिश करेंगे, उनको मोटिवेट और हेल्प सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे, सबको पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। ओके, सेफ्टी का इंश्योर होगा कि किसी को शारीरिक कोई नुकसान ना हो। ओके, हमारा सेशन के वजह से किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो वो सब चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट। lecture cum demonstration combines
एमसीक्यू में? प्रभासनी जी आप देख ही नहीं रहे। आई नो यू आर डूइंग सम होमवर्क, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा 5-10 मिनट देख लीजिए। नहीं देखेंगे तो हाउ विल आंसर? क्योंकि 4 ऑप्शन मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। Explanation and demonstration. Explanation and demonstration. Anyone else? So the method combines verbal teaching with practical demonstration. So explanation and demonstration. Okay. The primary advantage of demonstration in yoga is Visual learning. Visual learning. next. Lecture cum demonstration is most suitable for Yoga teaching. Yoga teacher. yoga. बट एक्चुअली मैं सच बोलूं तो साइंस का स्टडी भी हो है, बाकी सब भी है कि आप हमेशा एक केस स्टडी देंगे, प्रैक्टिकल इंटर्न देंगे, तो वो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का जो टीचिंग दोनों का जो एक गैप है ना, उसको ब्रीच करने के लिए इंटेंसिव एंड प्रैक्टिकल है। तो डेमोन्स्ट्रेशन हर फील्ड में होना चाहिए। व्हिच कम्स फर्स्ट इन ए लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन सेशन? Preparation. Evaluation. Right? Proper planning is essential before conducting the session. आज अगर मंडे है, मैं आज 2 आसना किया, कल और थोड़ा अलग वाला करूंगा, परसों थोड़ा सूक्ष्म में कुछ चेंजेस लाऊंगा, अलग दिन में, एक दिन में मंत्रों के लिए सब नहीं करवा सकता, कम कराऊंगा, एक दिन सूर्य नमस्कार किया, एक दिन चंद्र नमस्कार कराऊंगा, एक दिन साइड का लेटरल बेंडिंग का करवाया, एक दिन फ्रंट बेंडिंग करूंगा। अगर चारों एक बार कर लिया तो सुपाइन में इसमें उसमें चेंज करूंगा, स्टैंडिंग में, सीटिंग में, सब में तो थोड़ा चेंजेस करूंगा। तो ओवर ए वीक अगर वो मंडे टू फ्राइडे क्लास आ रहे हैं, सब में सब कुछ कवर होकर उनको एक होल अराउंड एक्सपेंस होना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है। डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प स्टूडेंट टू Observe correct technique. यस ऑब्जर्व करेक्ट टेक्निक्स। नेक्स्ट, ए गुड डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी Fast and clear Clear and and Clear and systematic. क्लियर एंड सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिकली डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन द टीचर शुड Demonstrate correctly. डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट। पहले मैं अच्छे से दिखाऊंगा, देन दे विल फॉलो। व्हिच स्टेज फॉलोस डेमोन्स्ट्रेशन? student practice. स्टूडेंट प्रैक्टिस। ओके, तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाने से पहले मैं पहले फ्रंट व्यू, साइड व्यू सब दिखाऊंगा, कहाँ गलती होता है जनरली उसको हाईलाइट करवाऊंगा, और जहाँ मुझे होल्ड करना है, एंटरिंग कहाँ, पोस्चर को होल्डर करना है, ब्रीदिंग कहाँ करना है, वो सब मैं कर करके पहले बता के उनको हाईलाइट कर। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज Reinforce learning. यस, रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ओके, और कुछ ऑप्शन किसी का? ओके, और कुछ बताइए, किसी और का और कोई ऑप्शन है बताइए मुझे। सो प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट इम्प्रूव स्किल डेवलपमेंट। ओके, तो उससे आपका क्या होगा, डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको बाद में आपको ना लिंक करने में अच्छा होगा और आप खुद भी कर पाओगे। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इज स्पेशली यूजफुल फॉर Skill learning. skill. Next, which is not a feature of good demonstration? Confuse. Confusion. Okay. The teacher should explain Procedure, benefits and precautions. सब बताना है, थोड़ा बेनिफिट्स, थोड़ा हाउ टू परफॉर्म इट। ओके, उसका इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, काउंटर पोजीशन, एवरीथिंग आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। ओके, द क्वेश्चन आंसर सेशन हेल्प्स इन Clarify doubts. क्लैरिफाई, थोड़ा डाउट्स क्लैरिफाई होगा, थोड़ा मैं जो चीजें समझाऊं क्वेश्चनरी में मुझे पता चलेगा कि ओके दिस वे। एंड ऐसे टाइप के आपको एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन भी आएगा किसमें, आपका थ्योरी एग्जाम जो 60 मार्क का है। One major benefit of lecture cum demonstration is Better retention. better retention. Okay. So seeing and doing improve memory and understanding. थोड़ा करके उसको फॉलो करने में सब में आपको इजी होगा, तो बेटर रिटेंशन। डेमोन्स्ट्रेशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन Student can clearly observe. स्टूडेंट कैन क्लियरली ऑब्जर्व। ओके, क्योंकि ना मैं देख के मैं नहीं समझूंगा तो कैसे मैं फॉलो करूंगा। तो विजिबिलिटी इज एन एसेंशियल फॉर एक्यूरेट लर्निंग। पोस्चर्स अच्छे से सही से होगा। नेक्स्ट,
द योगा टीचर शुड प्राइमरली एंश्योर Safety. सेफ्टी। तो आपको सूक्ष्म व्यायाम करवाना, जिनका डिसीज रिलेटेड है उनको उस चीज को ध्यान रखते हुए सिखाना है। सो सेफ इंस्ट्रक्शन इज ए फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर। सेफ्टी बहुत बड़ी चीज है, और उसके लिए हमारा एक सेशन भी आएगा आपको आगे, सीपीआर। तो सीपीआर क्या है? तो छाती को दबाना अगर पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, और इंसान गिर गया, ऑलरेडी स्टूडेंट गिर गया और निजीनेस लग रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाया, तो मेडिकल हेल्प लेंगे, और मेडिकल हेल्प आने तक आपको थोड़ा फर्स्ट एड और सीपीआर वगैरह देना है, ब्लोइंग करके ऑक्सीजन भी देना, सो दैट अगर बचने का कुछ चांस है तो हम लोग वो ट्राई करेंगे। Which teaching method is often combined with demonstration? Lecture. 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 Next. So explanation enhances understanding of demonstrated practicing. Okay? तो demonstration दिया, उसका theory भी बता देंगे कैसे कैसे। Proper demonstration reduces Errors and injuries. errors and injury. Injuries. बहुत बढ़िया। Student imitate correct technique and avoid mistakes. The final stage of presentation is Summary and conclusion. Conclusion. summary. Lecture cum demonstration is considered effective because it Integrate theory and practice. integrates theory and And practice. okay. कोई doubt? Any doubt? Yes, sir. नहीं? Okay. अभी थोड़ा I think some tough questions. I Sorry. think we should prepare some tough questions from chapters. So we'll try again when These are actually same questions, reversed vice versa. yes ma'am. So और tough questions prepare कर सकते हैं, but let's complete the course once and go for multiple sets. आपका क्या होगा, थोड़ा relate कर पाएंगे कि what is coming in the If we will go exam chapter, really. तो if it's together, it will be क्या होगा, difficult. Chapter by chapter, it will be easy. Some more complex and tough sets will do over time. Okay? चिंता मत कीजिए, और भी अच्छे से करेंगे और डेप्थ करेंगे, so that all will qualify आराम से। ओके, अच्छा स्कोर करेंगे, वो इंटेंट रखेंगे, हो जाएगा। क्या करेंगे, थोड़ा पतंजलि योग सूत्र देखेंगे। स्टिल वी हैव सम टाइम। पहले थोड़ा टफ लग सकता है, बट ओवर ए टाइम चैंटिंग करके मीनिंग समझ के उसको लिखेंगे ना नोटबुक्स वगैरह में, यू विल फील इजी। एंड वो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्लासिकल योगा है। सो अगर आपका 60 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सब में पतंजलि योग सूत्र, एंड इससे ना आपको एक मान के चलिए आराम से 10-20 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, 20+ आएगा। इनडायरेक्ट हो सकता है, बट ये सूत्रों के साथ कहीं ना कहीं लिंक होगा। ओके, फटाफट कवर करेंगे। व्हाट आर द 4 पादा, 4 चैप्टर्स क्या है? Samadhi pada, sadhana pada. समाधि पादा, साधना पादा, विभूति पादा एंड कैवल्य पादा। ओके, 4 पादास। सो विल गो बाय वन। आई थिंक आई हैव शेयर्ड यू, आई थिंक कल की परसों शेयर किया था, तो बार ओके। पहला वाला कौन चैंट करेंगे? पहला वाला कोई एक चैंट कीजिए, बहुत सिंपल सा है। प्रवासनी जी कीजिए। अथ योग अनुशासन। अथ योगा अनुशासनम। ओके, डिसिप्लिन से योग शुरू होता है। ओके, नेक्स्ट अभिषेक जी आप बताइए, सेकंड वन, सूत्र 1.2। अगर संस्कृत वाला हिंदी वाला टफ लग रहा है, यू कैन डू फ्रॉम हियर आल्सो, ट्रांसलेशन से, ट्रांसलिटरेशन से यू कैन डू। अभिषेक जी
बताएंगे? अभी मैम है क्या? होप यू आर डूइंग वेल। सर बोल थोड़ा नहीं मुझे नहीं बोलने में नहीं, कोल्ड कोल्ड कफ है तो आप रुक जाइए, हम लोग वानिका जी को बताएंगे। वानिका जी एक चैंट करके दिखाइए 1.2। योगेश योगे चित्तवृत्ति निरोधः। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। ओके, सो योगा इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर फ्लक्चुएशंस। माइंड का फ्लक्चुएशन को कम करेंगे। और उसमें चित्त क्या है वानिका जी? चित्त में मैं 3 चीजें बताया था। प्रवासिनी जी। मनस हम्म, अहंकार अहंकार और बुद्धि। एक बुद्धि। ओके, सो माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो तीनों मिलकर के चित्त है। सो चित्त इज द स्टोरेज प्लेस वेयर योर इंप्रेशंस और संस्कार विल स्टोर। ओके ओके, आज बहुत टफ लगेगा, नए लोग थोड़ा सुनिए बस। हाँ, वृत्ति क्या है वानिका जी? वृत्ति मतलब क्या है? सर जो कैमरा मैं ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, इंटरेस्टिंग लगेगा क्लास। हाँ सर, मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर हूँ, ओ डॉक्टर पर हूँ इसलिए। ओके ओके, नो वरीज। हाँ, वृत्ति क्या है? सर फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड, जो मतलब उसके फ्लक्चुएशंस ऑफ ऊपर। माइंड। हाँ बहुत बढ़िया मैम, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट कला जी। आगे आएगा लेकिन 5 वृत्ति में बताया था, एटलीस्ट 1 या 2 ट्राई कीजिए टू रिमेम्बर। 1-2 याद है तो बताइए। आउट ऑफ 5 वृत्तिस 1 वृत्ति और 2 वृत्तिस। विपर्याय विकल्प। विपर्या विकल्प। हाँ, विपर्याय नेक्स्ट। विकल्प प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा एंड स्मृति। परफेक्ट। सो प्रमाण, राइट नॉलेज। ओके, देन आपका आगे आता है प्रमाण, विकल्प, विपर्याय हाँ विपर्याय, निद्रा, स्मृति। सो विकल्प क्या है? मिथ्या ज्ञानम। विकल्प इज रॉन्ग सोर्स, रॉन्ग वे सम नॉलेज। विकल्प ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस नहीं है, हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, तो दैट्स इज योर ओके विकल्प। निद्रा क्या है? वन ऑफ द मेंटल मॉडिफिकेशन, जब आप कॉन्शियसनेस पूरा नहीं है, आप पूरा आपका सो गए हैं पूरा, तो उस केस में क्या है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पूरा रेस्ट में है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, सो दैट इज निद्रा। एंड व्हाट इज स्मृति? जो चित्त में स्टोर है संस्कार इंप्रेशन दैट यू आर रिटेंशनिंग, दैट इज योर कॉलिंग नाउ, सो दैट इज योर स्मृति। ओके, नेक्स्ट। when mental disturbances stop, the true awareness signs। तो आपका मन का जो भटकना, मंकी जंपिंग एंड ऑल, वो अगर कंट्रोल में आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेंटल डिस्टर्बेंसेस स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट 1.3 कला जी चैंट कीजिए 1.3। तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। मीनिंग थोड़ा जितना याद। It's it's already given in front of me. नो नो नो, लाइक व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, वो तो है, बट Yeah, एक सिंपल सिंपल वर्ड में, बिकॉज it's with पीपल आर न्यू। Purusha and Prakriti. जहाँ नहीं realize। नहीं नहीं, पुरुषा प्रकृति बोल के नहीं, बहुत सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊंगा, मैं मैं तब भी मेरा प्योर स्टेट को रियलाइज करूंगा एज ए दृष्टा, एज ए पुरुषा। आई रियलाइज माई प्योर सेल्फ स्टेट व्हेन रियलाइजेशन माई माइंड इज काम। मन को जब शांत करूंगा, एंड दैट इज नथिंग बट द सियर अबाइड्स इन हिज ट्रू नेचर। दृष्टा मतलब मेरे अंदर का जीवात्मा, दृष्टा जो पुरुषा है, इट रियलाइजेस इट्स प्योर स्टेट व्हेन माय माइंड इज काम। तो मैं अपने आप का प्योर स्टेट को, मैं आत्मन हूँ, ब्रह्मन का हिस्सा हूँ, मुझे वो तब समझ में आएगा जब मैं काम स्टेट में हूँ, मेरे में अविद्या अज्ञान वो सब हट के मैं जब विथ विजडम एंड नॉलेज हूँ। ओके, नेक्स्ट अभी जी, अगर नहीं चांट कर पा रहे हैं आई पास इट अगेन टू प्रवासनी जी, आप सुनिए आज के लिए। ओके, हाँ 1.4 प्रवासनी जी चांट कीजिए। वृत्ति स्वरूपाय वृत्ति स्वरूपाय ट्रांसलिटरेशन को देख लीजिए, इजी लगेगा, वो मिला मिला हुआ है संस्कृत में। हाँ सर थोड़ा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ओके, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो
we wrongly identify with thoughts and emotions or ego and which cause suffering. तो मैं क्या करूंगा, जब एक आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कुछ थॉट को एंड ऑल रॉन्गली, और जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हूँ, फोकस्ड नहीं हूँ, तो मुझे ह्यूमन सफरिंग उसमें आए. नेक्स्ट 1.5 वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टः. क्या है उसका अर्थ? वृत्तिस आर 5 एंड आर पेनफुल और नॉन पेनफुल. ओके, वृत्ति 5 तरह के होते हैं, वो क्लिष्ट भी हो सकता है, अक्लिष्ट भी होते हैं. तो कौन सा सूत्र? 1.5. नेक्स्ट सूत्र 1.6 प्रमाणा विपर्याया विकल्पा निद्रा स्मृतयः. तो the 5 वृत्तिस आर pramana, right knowledge; viparyaya, mithya gyanam, wrong knowledge; vikalpa, imagination; nidra, sleep; smritayah, memory. Next 1.7 pratyakshanumana gamah pramanani. Valid knowledge arises from perception, inference and testimony. Okay? थोड़ा सिर्फ आज के लिए बहुत ज्यादा नहीं, चैंटिंग पहले ट्राई करेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा. सूत्र का नंबर याद रखेंगे. नेक्स्ट टाइम मैं सूत्र दिखाऊंगा तो एटलीस्ट 1.8 बोल के याद रहना. विपर्याय मिथ्या ज्ञानम तदा दृष्टे तदा द्रुपे प्रतिष्ठम. सो रॉन्ग नॉलेज, मिथ्या ज्ञान क्या है? रॉन्ग नॉलेज इज द फॉल्स परसेप्शन ऑफ समथिंग एज अदर देन इट इज. तो एक रॉन्ग नॉलेज क्या है? सपोज मैं एक मनुष्य हूं, आप मुझे बोल रहे हो कि ये घोड़ा है, ये गधा है, एक फिश है, एक मोबाइल है, एक पेड़ है, बोलने से गलत है. शब्दा ज्ञानानुपति वस्तु शून्य विकल्प. वस्तु शून्य मीन्स एक रियल ऑब्जेक्ट है नहीं, जस्ट आई एम इमेजिनिंग. ओके, सो माई इमेजिनेशन मैं कहाँ से ले रहा हूँ? फॉलोइंग सम वर्ड्स. किसी ने कुछ बताया, उसको इमेजिन कर रहा हूँ एंड कुछ वर्ड्स फॉलो कर रहे कि ओके दिस द इमेजिनेशन, लेकिन रियली मुझे नहीं पता है. तो दैट इज नथिंग बट योर इमेजिनेशन और विकल्पः. नेक्स्ट 1.10 अभावा प्रत्ययाय अलम्बन वृत्तिर्निद्रः. Sleep is a mental modification based on absence of objects. Okay? Next 1.11 अनुभूता विषयः असंप्रमोषः स्मृतिः. So memory is the retention of experienced objects. अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्निरोधः. कंट्रोल ऑफ वृत्तिस इज अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. आप अगर अभ्यास करेंगे और उसका रिजल्ट से अटैच नहीं होंगे, ओके, एंड तन निरोधा, निरोधा मतलब स्टॉप, तो क्या होगा? आपका परफेक्शन आ जाएगा. तो अभ्यास वैराग्यभ्यम तन्निरोधः. ओके, दैट विल हेल्प यू फॉर द परफेक्शन. नेक्स्ट चैप्टर 2, दैट इज साधना पादा 46 to 51. आपका सिलेबस में भी है, ऐसे नहीं कि मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, एक बार सिलेबस में भी है, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 याद रहे. 2.4 स्थिरम सुखम आसनम. 2.46 बहुत इंपॉर्टेंट है, आसन रिलेटेड. आसना इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल पोस्चर. 2.47 प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्यम. Relaxation of effort and meditation on infinity perfects asana. Next 2.48 tato dvanda anabhighataha. So when you are perfection in that all thing, automatically you will no more disturbed with dualities. आपको confusion, okay, जो यहाँ वहाँ ये वो confusion से duality से आप खत्म हो जाओ, क्योंकि आप आसना करके अनंत में फोकस करके पूरा फोकस्ड हो गए हो. नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सूत्र 2.49 में बार बार क्लास में बोलता रहता हूँ, क्या है वो? रेगुलेशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज प्राणायाम. सो तस्मिन् सति श्वासा प्रश्वासः गतिर्विच्छेदः प्राणायामः. तो प्राणायाम क्या है? जब आपका आसन परफेक्ट हो जाता है, आफ्टर दैट तस्मिन् सति, उसके बाद
श्वास प्रश्वास, तो पूरा का रेचक एंड उसका विच्छेद कुंभ का इज कॉल्ड प्राणायाम. Okay? Inhalation and exhalation is pranayama. Then 2.50 क्या बोल रहे हैं? बाह्य अभ्यंतर, ओके, स्तंभावृत्ति देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म. तो आपका रेचक पूरक कुंभक, ओके, एक्सटर्नल इंटरनल रिटेंशन, ओके, एक्सलेशन इनहेलेशन एंड स्तंभा और कुंभक होल्डिंग रिटेंशन. तो इसमें रिटेंशन लिखा है ना ऑलरेडी. तो these are regulated by desha, place is desha, काला टाइम, नंबर संख्या भी, कितना कम करके कितना लंबा कर रहे हैं. परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म, ग्रेजुअली बिकम्स लॉन्ग एंड सटल, बहुत लंबा सांस लेके छोड़ना, वही आपका प्राणायाम है. नेक्स्ट सूत्र 2.151 बाह्य अभ्यंतर विषया आक्षेपी चतुर्थ. तो आपका बाहर अंदर और होल्डिंग जो होता है ऑटोमेटिकली डीप मेडिटेशन में, जब आप यहाँ ऑटोमेटिक आपका डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसी को हम केवल कुंभक बोलते हैं. सो there is a fourth type of pranayama that is transcends internal and external breath control, and this refers to kevala kumbhaka. Okay? So spontaneous suspension of breath. Next, chapter 3. Deshah bandhaschittasya dharana. So dharana is fixing the mind on one place. Next 3.2. Tatra pratyeka tanata प्रत्येकता अनंत ध्यानम. आपका अनंत के ऊपर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के ऊपर जब ध्यान दे रहे हैं, तो क्या होगा? आप जब क्या करते हो, धारणा एक ऑब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो, जब वो कंटिन्यूस हो जाता है, आप सुप्रीम कॉन्शियस से पूरा कनेक्ट हो जाते हो, अनंत में करते हो, आपका फ्लो पूरा कंटिन्यू हो जाता है और नो मोर डिस्ट्रक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट योर ध्यान. धारणा से ध्यान. देन समाधि क्या है? तदेवर्थ मात्रा निर्वासम स्वरूप शून्यमिव समाधि. स्वरूप जब शून्य हो जाता है, द ऑब्जेक्ट इज नो मोर अदर देन योर साधक. देन जब आप तपस्या करते हो, डीप मेडिटेशन में जाते हो, क्या है? ट्रू ऑब्जर्वेशन स्टेट, ट्रू पूरा एनलाइटमेंट स्टेट में जाते हो. देन ऑटोमेटिकली क्या होता है? आपका उससे समाधि स्टेज में चले जाते हो. और जब तीनों मिल जाते हैं, 3.4 त्रयम एकत्रम समयमः. तो संयमः क्या है? जब धारणा ध्यान समाधि तीनों मिल जाता है, उसको संयमः बोला गया है. तो संयम क्या है? जब तीनों एक होकर आप कैवल्य के पाथ में जाना चाहते हो, तो संयम स्टेज में आने से आपका हेल्प होता है. एनी डाउट? कोई डाउट? अभी जी, प्रवासिनी जी. ओके, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा. विल कीप द प्रैक्टिस. चलिए शांति पाठ करके क्लोज करते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमयम्. हरि ओम्. योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतुं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम श्री गुरु जय. क्लोज करते हैं आज के लिए, एंड विल मीट अगेन.